کوئی شعر پسند آئے، کوئی ادا پسند آئے، کوئی محاورہ پسند آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ واہ واہ، دل کھول کے واہ واہ کریے، تعریف کیجئے. اور اگر آپ کو نہیں پسند آئے تو شرافت کا تقاضا ہے کہ خاموشی سے بیٹھے رہیے، بم بم بولے کیجئے، اور کیا کر سکتے ہیں، مال میلہ ہے. تو حاضرین، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے دو نئے داستان گو، عثمان شیخ اور رانا پرتاپ سنگر. استقبال کیجئے ان کا. واہ واہ، کیا ادا ہے. تو آپ کو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے؟ شکریہ دانش بھائی اس حوصلہ افزائی کے لیے. تو حاضرین، پیش داستان آذر جادو اور امر ایار. تو حاضرین، جیسے کہ روایت رہی ہے، داستان شروع کرنے سے پہلے ساقی نامہ پڑھا جاتا ہے، یعنی شراب پلانے والے کی تعریف کی جاتی ہے. آپ کہیں تو دھنی روانے والے کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال موقع ایسا نہیں ہے. تو لیجیے پیش ہے ساقی نامہ. نازوں کے اٹھانے والے ساقی، رندوں کے چھکانے والے ساقی، آباد تجھی سے انجمن ہے، آرائش محفل سخن ہے، پھر رند ہوئے ہیں تیرے بیتاب، ایک اور جام باد نام، وہ جام جو رشک جام جم ہو، وہ میں کہ نہ جس کا نشہ کم ہو، وہ میں کہ جو دکھائے نئے رنگ، تقریر میں ہو طلسم کا ڈھنگ، وہ آج پلا دے جام ساقی جس میں کہ ہو تیرا نام ساقی، اقلیم سخن کو میں کروں سر، مداح رہے میرے سخنور، زینت دہے باغ کامرانی، اے جاہ بنے میری کہانی، وہ پھول جھڑے میری زباں سے، ہر صفا نہ کم ہو بوستاں سے، مشتاق ہے اہل فضل اے جاہ، سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ، سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ، آغاز بیاں کرو یہاں سے، رونق دو سخن کو داستاں سے. تو حاضرین، عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ طلسم کے بادشاہ افراسیاب کو جب پتا چلا کہ امر ایار نے مہتاب جادو کا قتل کر ڈالا تو وہ مارے غصے کے تھر تھر کانپنے لگا. اب حال افراسیاب کا سنیے کہ اس کی عملداری میں 60,000 ملک جادوگر اور جادوگرنیوں کے آباد، اور بادشاہ اور ملکوں کے سب افراسیاب کے مطیع اور منقاد، اور اس کے بنوائے ہوئے طلسم ہوش و ربا میں 3 حصے اور مقام. پہلا حصہ اس طلسم کا ہے پردہ ظلمات، یعنی اندھیرے کا پردہ، کہ جس کے پیچھے بزرگ افراسیاب کے بڑے بڑے جادوگر دن رات عبادت اور تپسیا کرتے ہیں، اور جادوگروں کے خدا سامری اور جمشید سے نئے نئے جادو انعام میں پاتے ہیں. اور دوسرا حصہ اس طلسم کا ہے طلسم باطن، یعنی وہ طلسم نظروں سے چھپا ہوا طلسم کہ جہاں افسر، سپہ سالار اور بڑے بڑے عہدیدار رہتے ہیں. طلسم باطن میں بنا افراسیاب کی اجازت کے پہنچنا محال ہے. اور تیسرا حصہ اس طلسم کا ہے طلسم ظاہر، یعنی وہ طلسم جو سب کو دکھائی دے کہ جہاں رعایا اور عام لوگ رہتے ہیں. اور ظاہر اور باطن طلسم کے درمیان ایک شہر، یعنی جادو سے ایک دریا کھینچا کہ جس کو دریائے پورے روا کہتے ہیں، اور وہ سرحد ہے طلسم باطن کی حفاظت کے واسطے، اور جو کئی ہزار کوس تک پھیلا ہے. ایک پل دھوئیں کا بنا ہے جس میں ایک عمارت 3 درجے کی دھوئیں کے اس پل کے اوپر کھڑی ہے. اول درجے میں دھوئیں کی عمارت میں پریزادیں شہنائیاں اور کرنائیاں منہ سے لگائے کھڑی ہیں، اور دوسرے درجے میں اس عمارت میں پریزادیں شہنائیاں اور کرنائیاں منہ سے لگائے کھڑی ہیں، اور دوسرے درجے میں کنویں کی عمارت میں پریاں جھولی میں موتی بھرے
दम बदम उन्हें उछालती हैं कि मोती दरिया में गिरते हैं कि दरिया की मछलियां उन्हें मुंह में लिए तैरती फिरती हैं। और तीसरे दर्जे में कुएं की इमारत में बड़े बड़े कद्दावर जवान कौम के हबशी दो दो सफ़े बांधे 5 शमशीरें बरहना आपस में लड़ते हैं कि खून उनका बहकर दरिया में गिरता है कि पानी उस दरिया का वही खून है जिसके सबब से नाम उस दरिया का दरियाए खूने रवा और नाम उस पुल का पुले फरीजाना है। हाज़रीन, ऐसा है तिलिस्म अफरासियाब का जहां दाखिल होकर अमर अय्यार ने महताब का कत्ल कर डाला। जब ये खबर अफरासियाब को मिली तो मारे गुस्से के थर थर कांपने लगे और इस गजब से दरख्त को देखा कि वो चलने लगा। खुद भी शोला बन उसके अंदर गायब हुआ और बाद लम्हे के जो बरामद हुआ तो एक तख्ती हाथ पे, इस पे सूरत एक हसीना जमीला की बनी थी। अफरासियाब ने दस्तक दी, जमीन चक हुई और एक साहिर निकला निहायत बदसूरत। अफरासियाब ने उसे हुक्म दिया, आजर जादव जल्द रवाना हो कि अमर अय्यार महताब का कत्ल करके खानौज उसी जंगल में है, उसे तलाश करके गिरफ्तार कर ला। उसके पहचानने को एक तस्वीर दी जाती है। ये तस्वीर गौ की औरत की है कि राह में जो भी शख्स तुझसे मिले तू ये तस्वीर देख लेना कि अय्यार जो भी शक्ल तब्दील करके आएगा और उसकी जो शक्ल असल में होगी वैसी ही ये तस्वीर हो जाएगी। और अगर वो अय्यार ना हुआ तो जैसी ये तस्वीर इस वक्त औरत की है वैसी ही रहेगी। वाह! हाज़र जादू सलाम ठोककर तस्वीर लेकर रवाना हुआ और महताब के जंगलों में अमर को तलाश करने लगा। इधर अमर उसी जंगल में एक मुकाम पर बैठा दिल में सोच रहा था कि अमर देखिए क्या अंजाम होता है यहाँ आने का। लाखों साहिर मौजूद हैं, कहाँ तक कत्ल हो सकेंगे। मुकदमा है तिलिस्म में, नहीं मालूम लोहे तिलिस्म कहाँ है। खुदा जाने शहजादे पे क्या गुजरी, वो किधर गया, जिंदा भी है या मर गया। इस फिक्र में अमर बैठा था कि उसने एक साहिर को हर तरफ तजस्सुस कुना देखा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। देखते ही ख्याल आया इस कमबख्त को भी कत्ल करना चाहिए, जो साहिर कम हो वही सही। ये सोचकर एक जादूगर की सूरत बनाकर चला। हाज़र जादू ने देखा एक साहिर मुहीब सूरत जिसके आंख कान नाक से शोले आग के निकलते हैं, करीब चला आता है। खुद उसके करीब गया और कहा, तुम कौन हो? अमर ने कहा, पहले अपना नाम बताओ। हाज़र जादू ने उसे अपना नाम बताया और कहा कि अमर को ढूंढने आया हूँ। अमर ने कहा, मैं भी इसी फिक्र में हूँ। अरे महताब जादू का संगी हूँ, कब से खबर उसके मरने की सुनी, तलाश उसकी करता हूँ। हाज़र ने कहा कि चलो हम तुम साथ फिक्र करें। अमर उसके साथ हो लिया। पर अमर तो इस फिक्र में था कि काबू पाऊं तो कत्ल करूं। तभी हाज़र को ख्याल आया कि बादशाह ने कहा था कि राह में जो भी शख्स तुझसे मिले तू ये तस्वीर देख लेना। ये सोचकर उसने तस्वीर देखी। तस्वीर ने सूरत असली अमर की पैदा की, यानी लोमड़ी सा सर, जीरा सी आंखें, गुब्बारे से कान, कुलचे की तरह गाल, तागा सी गर्दन, रस्सी की तरह हाथ पांव, नीचे का जिस्म 6 गज का और ऊपर का 3 गज का। अल्लाह अल्लाह! ये हुलिया मुबारक देखकर पहले तो हाज़र घबराया, समझा कि कोई साहिर है कि अय्यारी से शक्ल एक साहिर की बना ली है। भाई एक सहर पढ़कर अमर पे जो फूका, अमर के हाथ पांव की कुव्वत जाती रही। एक जंजीर अपनी झोली से निकाली, अमर के हाथ बांधे और लेकर चला। अमर ने कहा, अरे बिरादर, मुझको क्यों बिना सबब आजार देता है? हाज़र ने कहा, अबे तुम मुझसे अय्यारी करता है, तेरा ही नाम अमर है, मुझे तेरे हाल की खबर है। अमर को गुस्सा आया, बोला, बच्चा अब बचते मालूम नहीं होते हो, कोई दम में जहन्नुम रसीद हुआ चाहते हो? 1,84,000 अय्यार दाखिले तिलिस्म हुआ है,
कोई न कोई तो आकर कत्ल करेगा। आजर ने कहा मैं सबको कत्ल करूंगा, तेरे धमकाने से न डरूंगा। गरज अमर को लेकर चला। दूर से जरगाम शेरदिल ने देखा कि उस्ताद को कोई साहब पकड़े लिए जाता है। ये छुड़ाने की फिक्र में कोस बाहर आगे निकल गया। एक जगह एक अहीर गाय भैंस चरा रहा था। उसके सामने सूरत बदल कर गया और कहा, अबे झाड़ी में भेड़िया बैठा तेरी गाय को ताक रहा है। अहीर घबरा कर झाड़ी की तरफ दौड़ा। जरगाम ने पुष्ट की तरफ से कमंद मारी कि हल्की कमंद के गर्दन से बची हुए मुंह से भी बोला लगे। जरगाम ने उसे जमीन में गिराकर बेहोशी मुंह में मल दी। अहीर बेहोश हो गया। उसके कपड़े उतार कर आप पहने, अंगोछा सर पर बांधा, धोती बांधकर, मिर्चाई पहनकर उसकी शक्ल देखकर अपनी शक्ल बनाई और लकड़ी लेकर गाय वगैरह चराने लगा। अहीर को एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया। इस अरसे में आदर जादू मैं अमर को लेकर वहां पहुंचा, क्योंकि धूप भी बहुत थी और दूर का चला हुआ आता था। एक अहीर को देखकर कहा, भाई तेरे पास लुटिया और डोरी हो तो पानी लाकर मुझे पिला दे। अरे गोसाई, अरे घाम से चले आते हो, तब मेला ठेला देख के आए हो, थोड़ा बैठो, थोड़ा पानी वानी पी लो। पानी बाद में पियो, दूध पी लो। हाँ, आप कहो तो दूध धोकर लाऊं। अच्छा ठीक है, ले आओ भाई। जरगाम ने एक गाय को सुरकार का पास बुलाया, दूध दुआ और पीतल की लुटिया में भरकर बेहोशी मिलाकर आजर जादू को दिया। आजर ने चाहा कि पीऊं, मगर उसे ख्याल आया कि मेहताब जादू को 2 अय्यारों ने मिलकर मारा था। ऐसा ना हो कि साला ये भी अय्यार हो। लाजिम है कि तस्वीर देखे। जैसे उसने तस्वीर देखी, सूरत हसूर से असली जरगाम की होगी। उसने फौरन शहर पढ़कर उसे भी गिरफ्तार किया। जरगाम ने हर चंद कहा, अरे भैया मैं अहीर हूँ, यहाँ मेला देखने आया था, है खामखा हमें पकड़ लिया। उस वक्त आजर जादू ने कहा, तुम मुझसे मक्कारी करता है, मुझे तेरे हाल की खबर है। अमर ने कहा, अबे हम 2 को गिरफ्तार किया तो क्या, अबे लाखों साहिर यहाँ आए हैं, कोई दम में हलाक हुआ चाहता है। देख मुनासिब है ये तो हमारी हिदायत कर। आजर जादू दिल में डरा और चाहा कि इसे भी पकड़ लूं। देखिए क्यों का तिलिस्म बातिन में पास अफरस याब के पहुंचता हूँ। लाजिम है अब राह में जो भी मिले बगैर तस्वीर देखे उससे बात भी ना करे। ये सोचकर आगे रवाना हुआ। पर अय्यार जो हर तरफ फैले हैं और दम बदम मुकाम बुलंद पर पहुंचकर एक दूसरे का हाल दरियाफ्त कर लेते हैं। उनमें से एक अय्यार फर्क फिरंगी ने दूर से देखा, उस्ताद को और एक अय्यार को कोई साहिब पकड़े लिए जाता है। ये देखकर पहाड़ के दर्रे में बैठकर लहंगा, फरिया और सब सामाने अय्यारी किस्वत से निकालकर अपनी सूरत एक जने महे जमाल की बनाई। हाथ पांव महावर से रंगे, पोर पोर छल्ले पहने, लहंगा गिनगाम का पहना, चुनरी सुर्ख रंगी ओढ़ी, पट्टियां पार के काजल आंखों में लगाया, मांग में सिंदूर भरा, झुमके और मुठियां कानों में पहनी, टीका और बिंदिया माथे पे लगाया, हाथों में पहुंचियां और पाँव में कड़े और 10 पैर की उंगलियों में अनवट बिछवे पहनकर बेहोशी मिली शराब की बोतल हाथ में लेकर ऐसी सूरत बदली कि जैसे कलवारिन होती शराब बेचने वाली। मगर वो हुस्नो जमाल, रंग और रागने यारी से दुरुस्त किया कि सुंदर रूप स्वरूप मन भावनी यूं लुचके जिसे आंखों में लीजिए। जो मोर सुजीवन के संग दिखे दुखी, छब दिखे ही छजे। पान खवा तो महार, ऊसा रस चाहे तो चंद्र को न दीजिए। अटुक और बनाओ बने ना, बने ठग बैठे मुख को देखा ही कीजिए। अल हासिल दिल फरे, घूंघट निकाले, अटखेलियां करती तरफ आजर जादू के चली। छम 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 वो इस तरह से अचपली आती थी, कयामत जिलों में चली आती थी।
आज़र जादू के सामने से होकर जब वो निकली, उसने देखा एक महपारा जिसमें शोखी और नाजो अदा भरी है, रश्के देहे हूरो परी है, मस्ताना चाल चलती, दिले आशिक को पांव से मलती चली आती है नाम खुदा अदा छरे कुछ जोर तमाशा, ये आपकी रंगत गात ऐसी भवन कहर भवन और झुमकड़ा, और उस पे मलाहत जादू है निगर शब है गजब नूर है मुखड़ा, और कदर कयामत गारत करे दी को बुते काफिर है सरापा, अल्लाह की कुदरत। देखते ही आज़र जादू घायल हुआ। पास जाकर कहा, अरे बेकलवारिन, कहाँ जाती हो? थोड़ी शराब तो देती जाओ। उस नाज़नीन ने सरासर घूंघट हटाकर मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और कहा, ये शराब बिकाऊ नहीं। अरे अल्लाह! आज़र जादू ने जब उसके रुखे ज़ेबा को देखा, अक्ल होश खोया। अरे कहाँ जाती हो? जहाँ मेरा जी चाहता है। तुम कौन होते पूछने वाले? यूपी पुलिस से हो क्या? आज़र ने देखा कि हंस के बातें करती है, मालूम होता है राजी है। ये समझकर हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कहते हो? देखो कोई आ जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊं, तुम्हारा कुछ ना जाएगा। सामने सायादार दरख्त है, संगम का किनारा है, दरख्त के नीचे हम तुम दोनों बैठे, थोड़ी शराब पिए, दो बातें करें, फिर चले जाना। हमारी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अरे हमेशा तुम्हारी हिदायत करूंगा, जो कुछ कमाऊंगा वो दूंगा। मुलाकात अपने घर वालों से करो, मेरे क्या काबिल नहीं है? वैसे भी मैं राहगीरों से बात नहीं करती। हाँ। अरे आज़र मिन्नतें करने लगा, पाँव पर सर धरने लगा। कहा, अरे मैं इसी तिलिस में रहता हूँ, मुसाफिर नहीं, मुसाहिब अफरासियाब हूँ। तुम कोई हो, मैं ऐसी शोखदीदा नहीं हूँ जो यकैत मर्दों के दम पर चढ़ जाऊँ। आज़र समझा कि नाज़े माशिकाना करती है। ये समझकर जिस जंजीर में अमर और ज़रगाम बंधे थे, उसे अपनी कमर से बांधा, कलवारिन को गोद में उठाया और लेकर चला। वो नहीं किया कि उसे दरख्त के नीचे लाकर उतारा, कमर से चादर खोलकर बिछाई, अमर और ज़रगाम को दरख्त से बांध दिया। उस महबूबा को बिठाया और कहा, मेरी जान तुम पर जाती है, मेरे पहलू में बैठ, दिले गमगीन को शाद कर। उस मां कहकर ने ठंडी सांस भर के ये शेर पढ़ा, हम आसमां चुके हैं बहुत सर्द और गर्मिश, हम आसमां चुके हैं बहुत सर्द और गर्मिश, उसको फरेब दो कि जो नाकर्दा का आंखों। आज़र जादू ने उसे आगे बढ़कर गले लगाया और बोसा लेने को मुंह बढ़ाया। मुझसे ऐसी बातें ना करो, ये मुंह देखे की मोहब्बत है, मर्दों की जाती बेमुरब्बत है। अगर मुझसे दारो मदार मंजूर है तो कसम सामने की खाओ, मेरे सिवा किसी औरत से बात ना करोगे। आज़र जादू ने सामने के साथ गंगा जी की भी कसम उठाई और कहा कि भाई अब तो कुछ होने दो। कलवारिन ने जाम शराब का भर कर दिया। आज़र ने चाहा कि पियो, पियो ना।